Very good morning to all of you. Right. We are honored that Ashok Kumar sir has come to IS Baba, and it is very rare that you find a person who has had such a long stint in civil services to be so academically inclined. And to talk about Ashok Kumar sir, मैं बात करूं तो यार बहुत बड़ा छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है, right? He is DGP Uttarakhand, Crime Law and Order, right? He has been serving in Indian Police Service for past 30 years. He has written amazing books, right? And one of his books, Challenges for Internal Security of India, is fourth ranked book which is read for civil services, right? So give a big hand. So, and sir has got so many accolades, so many awards, right? कि अब तो सर को भी काउंट भूल गया होगा, right? So this is a brilliant opportunity for you to interact with such a great, being great, a humble personality, to know about his experiences, to know about what his life is like being an IPS officer, and to know how you should be to be an IS officer, what is required to be an IS officer, right? And then there will be some academic questions also which will be there in your mind that you will be free to ask. So it won't be a monologue. Sir has told me to tell this to you that it has to be a question answer session. It has to be extremely interactive, because if it is interactive, only then you will be able to learn more, right? Experience more, right? No, then it will register more. Then it will register more, right? Otherwise, you will switch off. So without a further ado, I would like to welcome Ashok Kumar sir. One second. Madhav sir present a bouquet. Thank you. On this note, I would like to hand over the dais to sir. Thank you, sir. Thank you, Atyab. We will be talking about 3-4 things. Firstly, as he said, what my 30 years have been in service, right? We can talk bilingual, Hindi, English, dono chalega. Let me tell you first of all that IPS is a very tough job, very challenging, physically also and otherwise also. But don't worry, physically everyone becomes fit. जब एकेडमी का रगड़ा लगता है सब अपने आप ठीक हो जाते हैं. कई लोग सोचते हैं मैं आई एम नॉट फिट फॉर पुलिस, ऐसा नहीं है. और बट इट्स वेरी सेटिस्फाइंग. It is very satisfying. On this note, I can say that why did I join civil services? I come from a very rural background of Haryana, and I studied in a government school. And because I was good at mathematics, so I came to IIT Delhi on my own, without any coaching. And then during the internship, which takes place after third year, then I realized that engineering is not my cup of tea. Because उन दिनों ट्रेंड था, अभी तो 50 कैरियर आपके पास है, बहुत कैरियर हैं अभी. उन दिनों लॉ भी नहीं था, फैशन डिजाइनिंग भी नहीं था, दुनिया भर के इकोनॉमिक्स नहीं था. सिर्फ जो अच्छा है एकेडमिकली तो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा. तो बेसिकली द सोसाइटी पुश्ड मी इनटू इट, राइट. पेरेंट्स को तो पता ही नहीं था. दे डिडंट नो व्हाट इंजीनियरिंग इज, व्हाट आईएएस इज, व्हाट आईपीएस इज. तो एक टीचर्स का प्रेशर है, लड़के ने इतना अच्छा किया, मेरिटोरियस है, तो ही शुड गो एंड स्टडी इंजीनियरिंग. तो हम आ गए. तो वहां आके रियलाइज किया, आई वाज विद उषा फैंस कैलकाटा, एंड देन आई felt that this is not my kind of job. Spending 8 hours a day, 10 to 6 or 9 to 5, I think it was 9 to 5, was very tough. तो पूरी जिंदगी मेरी कैसे बीतेगी अगर एक दिन के 8 घंटे बिताने आपको मुश्किल हो जाए. तो व्हाट काइंड ऑफ अ जॉब इट वुड बी? इट्स अ ट्रेजेडी. ऐसा जॉब लेके मुझे क्या करना है जिसमें मेरा मन ही नहीं लगेगा, तो हाउ वुड आई एंजॉय इट? सो द जॉब यू शुड सिलेक्ट शुड बी क्लोज टू योर हार्ट. तभी तो आप, अभी तो आई से वर्क इज माई पैशन, वर्क इज वर्शिप.
बिकॉज 24 घंटे 48 घंटे का पता नहीं चलते हैं. द चैलेंज इज सो मच जो आपको आगे ले जाता रहता है. There was a time, 6 December 92. I was posted as ASP Allahabad, UP cadre, yes. So, you know 6 December 92, Babri Masjid demolition. For 10 nights, the curfew was there in the city, 10 nights, and we didn't sleep for 10 nights. Just imagine 240 hours of work and still hardly any strain. Because something motivates you, something great you are doing. हमारे शहर में दंगा नहीं हुआ, यही बहुत है. शहर के यूपी के 50 शहरों में दंगे हुए उस साल, है ना, बड़े बड़े दंगे हुए. मुंबई में तो और ज्यादा बड़े हुए, बट इलाहाबाद में नहीं हुआ. वो आपको एक सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो जी हमने इसको जलने से बचा लिया. सो दैट इज द काइंड ऑफ वर्क आईपीएस इज. बाकी there will be lean phases also, and you are not always, you will not always be in power to say so. But as I said, overall it's very very interesting job and very challenging, but very very satisfying. And you have the feeling कि you have helped lot many people. जो फेज आपका एसपी एसएसपी शिप का होगा, आप दिन में कम से कम 100 लोगों की हेल्प करोगे मिनिमम. So how much satisfaction it will give you? किसी मर्डर के एक्यूज को पकड़ रहे हो, किसी रेप की विक्टिम की हेल्प कर रहे हो, किसी की स्टॉकिंग हो रही है उसको वो कर रहे हो, किसी साइबर क्राइम के उसको हेल्प कर रहे हो. तो इट्स वेरी चैलेंजिंग, वेरी गुड, वेरी हेल्प, मतलब वेरी सेटिस्फाइंग. जिस पर्पज के लिए आप सिविल सर्विस में आ रहे हो, आई थिंक आई गॉट इट. तो ये भी नहीं है सारे लोग 100% लोग खुश होते, ये भी नहीं. मतलब मैं अपना ही बोल सकता हूँ कि जिस पर्पज से मैंने इंजीनियरिंग छोड़ के मैंने शिफ्ट किया फ्रॉम आईआईटी टू आईपीएस, तो वो सही, आई फील कि वो सही था मेरा छोड़ना. एंड आई हैव एंजॉयड माय 30 इयर्स. एंड इट्स ए 24 आवर जॉब. इट्स नॉट कि 8 घंटे ऑफिस करके खत्म हो गया, नहीं. दिन रात चलता है, कभी भी फोन आएगा, कभी भी सब चलता रहता है. क्रिमिनल तो संडे देखता नहीं है. ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक विल टॉक अबाउट इज cracking civil services. This is also one of my books. Cracking civil services, the open secret. First of all, what is success dependent upon? Tell me, what is success dependent upon? Huh? Labor, hard work मतलब. और perseverance. और huh? Goal, patience, perseverance, dedication. Huh? Right approach, consistency, motivation, commitment. ये सब तो है. टैलेंट नहीं है क्या? हाँ? कुछ चीज एप्टीट्यूड भी है ना. एक मैं पहले ब्रॉड ले रहा हूं, फिर हम क्लोज आएंगे. ब्रॉडली लाइफ में स्टडी होती रहती है. तो ब्रॉड पैरामीटर्स में आया एक आपका इनबोर्न टैलेंट, हेरिडिटी बेसिकली, जो मेरे को मैथमेटिकल मिल गया. मैंने आईआईटी के लिए कुछ नहीं किया ऑलमोस्ट और आ गया, है ना. तो एक वो है. दूसरा आपका हार्ड वर्क, परसिवरेंस, उसमें सारी क्वालिटीज आती है सब. टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट. और एक ब्रॉडली बात करेंगे तो चांस फैक्टर, लक फैक्टर है कि नहीं. कई बार यूपीएससी का दूसरा नाम लेते ना लोग, सुना आपने, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन. हमारे टाइम में उल्टा पुल्टा सर्विस कमीशन में बोल देते थे. कई बार रैंक उलट पुलट हो जाते हैं आपकी एक्सपेक्टेशन से. तो कुछ चांस फैक्टर तो है.
तो टैलेंट इज इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा चूज ए कैरियर विच इज क्लोज टू योर हार्ट, वहीं आपको चूज ए कैरियर विच इज ऑल्सो सूटेड टू यू। स्वॉट एनालिसिस सुना ना आपने, स्ट्रेंथ वीकनेसेस। तो जब तक आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, आपने ऐसा कैरियर चूज कर लिया, तो फिर आपका सक्सेस के चांस कम हो गए ना। सो विच इज क्लोज टू योर माइंड ऑल्सो। आप सोचें कि सचिन तेंदुलकर बनेंगे और हर बार 10 मतलब 1 साल की ट्रेनिंग के बाद भी 10 के नीचे ही आउट हो रहे होंगे, तो कैसे बनेंगे? इसका मतलब आपका नेचुरल टैलेंट नहीं। कुछ लोग देखेंगे आप, कपिल देव ने तो 11वीं 12वीं क्लास के बाद क्रिकेट शुरू किया था, 2 साल में इंडिया टीम में था। When he started, within 2 years he was in India team, and he was the fastest bowler we had in those times. तो टैलेंट भी है, बट ब्रॉडली बोलेंगे 35% आपका एप्टीट्यूड, 50% योर हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क है। ठीक है, हार्ड एंड स्मार्ट वर्क शुड नॉट ओनली बी हार्ड बट इट शुड बी स्मार्ट ऑल्सो। तो उसमें बाकी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, और 15% चांस फैक्टर। सो देयरफॉर हमको हार्डवर्क पे फोकस करना है 50%, जो आपके हाथ में। वैसे यूपीएससी को मेरी नजरों में आईआईटी में और यूपीएससी में रिवर्स हो जाता है। आईआईटी में एप्टीट्यूड के 70 नंबर हैं और यूपीएससी में हार्डवर्क के 70 नंबर हैं। सीरियसली, बिकॉज यहाँ पे मीडियोकर आदमी भी यूपीएससी निकाल सकता है, अगर आपने जो चीजें चाहिए। मैंने आज तो डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे, मैंने क्रैकिंग सिविल सर्विसेज में लिखा है। तो आपका वर्क हार्ड और स्मार्ट हुआ तो पक्का निकल सकता है। वही है कि फालतू में एनर्जी वेस्ट ना हो, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। किसी ने कहा कि एनसीईआरटी पढ़ डालो, किसी ने कहा न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना। आप लगे हुए 4 घंटे रोज न्यूज़पेपर पढ़ने, उससे कुछ नहीं होगा, है कि नहीं? 4 घंटे अगर आपने न्यूज़पेपर भी दे दिए तो आपके पास बाकी क्या रह गया? नॉलेज इज अनलिमिटेड, 100% तो गूगल के पास भी नहीं है कि नहीं? इसको मैंने बंद किया था। तो हमें वी शुड ऑलवेज वर्क फॉर 90%। यूपीएससी का पहला फंडा मैं बता रहा हूं आपको, कभी भी 100% के लिए मत जाइए आप। बताइए क्यों? वाई? हाँ, 100% प्रिपरेशन में आप बैठ जाओगे, कर ही नहीं सकते। 100 तो पॉसिबल ही नहीं है, आई टोल्ड यू। मतलब पूरी गूगल छान मारोगे तो भी 99 पॉसिबल है, और गूगल कितना अनलिमिटेड है यू नो। देयरफॉर जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है ना, इन एवरीथिंग देयर इज अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। बियॉन्ड द ऑप्टिमम पॉइंट रिटर्न डिक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, तो 90 के बियॉन्ड आप समझ लो बिल्कुल उसको करना सुसाइडल है। कभी भी 100% का टारगेट मत करके चलो, 90% पे ही फोकस करो। 90% मैंने अच्छे से कर लिया, रीडिंग स्किल्स राइटिंग स्किल्स दोनों मैंने बहुत अच्छे, ये बड़े 2 इंपॉर्टेंट शब्द बोल रहा हूँ। तो आपके एक क्वेश्चन में 8 आ गए तो 72, 7 आ गए तो 63, और क्या चाहिए? 60 to 70 यू आर ऑलरेडी देयर। आप 100 कर लो, मुझे 100 अटेम्प्ट भी करना है, 100 तैयार भी करना है, तैयार करते करते बैठ जाओगे, अटेम्प्ट होगा नहीं, सारे क्वेश्चन आपके 2-3 पे रह जाएंगे, है कि नहीं? You will reach 20-30 marks, maximum 40. If you go for 100, you will never cross 40. तो टारगेट 90 का करो। तो जो 4 घंटे अखबार पढ़ने वाले वो कभी नहीं सिविल सर्विसेज क्रैक करेंगे, क्योंकि वो अटक गए ना वहां पे। आपको मैक्सिमम 1 घंटा देना है, मैक्सिमम। तो ये चीजें हमें देखनी है, जो हमारा वर्क है। इसी तरह से आगे मैं बात करूं तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, स्वॉट एनालिसिस। अपना स्वॉट एनालिसिस हर कोई करके चले,
कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, मेरी थ्रेट्स क्या है। बट उसको एनालिसिस करेंगे, अपने एप्टीट्यूड्स समझेंगे। तो मैं जो बीच में आ रहा था कि यूपीएससी ज्यादा रगड़ा एग्जाम है, तो ऐसे भी लोग हैं कि आई नो एन आईपीएस ऑफिसर ऑफ 90 बैच हु फ्लंक्ड इन क्लास 8th, स्टिल ही बिकेम आईपीएस। कैन यू इमेजिन? ये आईआईटी में पॉसिबल नहीं है, उसमें नेचुरल टैलेंट चाहिए। ये सिविल सर्विसेज में पॉसिबल है। भास्कर राव, आई थिंक इज कमिश्नर बेंगलोर नाउ, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, ही फ्लंक्ड हिज 8th क्लास। तो क्या ऐसा क्या हुआ कि फिर उसने सिविल सर्विसेज क्रैक कर दिया? ही सेज कि उसको सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया आफ्टर ही फेल्ड द एग्जाम। एवरीवन, इंक्लूडिंग हिज फ्रेंड्स, इंक्लूडिंग हिज फैमिली, इंक्लूडिंग हिज रिलेटिव्स, डंप कर दिया, मतलब काइंड ऑफ द फीलिंग ऑफ रिजेक्शन जनरेटेड सो मच फायर इनटू हिम। उसने कहा अब तो प्रूव करना है, अब तो प्रूव करना है कि आई कैन ऑल्सो डू इट। उस दिन के बाद वो राइज ही राइज करता चला, है ना। तो ये भी ऐसे भी फेजेज आते हैं लाइफ में। कई लोग आप में से सोचेंगे कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, ठीक है ना। ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग। जैसे मैंने बोला, मैं गांव के स्कूल से पढ़ा था, पता भी नहीं था इंजीनियरिंग क्या, आईआईटी का तो नाम ही नहीं सुना था। हमारा टारगेट था एनआईटी, उन दिनों आरईसी बोलते थे, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र। तो अब जस्ट लॉस द थ्रेड। तो आई वाज जस्ट सेइंग कि अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा था। तो हिस्ट्री में, माइथोलॉजी में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पास। ही हैड नो अपॉर्चुनिटी। बताइए कौन? हाँ, एकलव्य। एकलव्य में क्या खास है? व्हाट इज स्पेशल अबाउट हिम? डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, ये सब है। पर ये कहां से आया? चाहिए हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, ये तीनों चाहिए। बट ये उसके पास कहां से आया? द्रोणाचार्य रिजेक्टेड, बट ही हैड नो अपॉर्चुनिटीज। यस, वहीं से आया। उसकी अपॉर्चुनिटी देखो ना, मतलब उसके पास आज के जमाने में कहेंगे किसी पे डीपीएस से पढ़ा है कोई, कहीं से, मैं तो गांव से पढ़ा हूं, हो गया ना। उसने कहा यू डोंट बिलोंग टू दिस क्लास, तुम्हें अधिकार ही नहीं है। मतलब उसको कोई अच्छा स्कूल नहीं मिलेगा, कोई टीचर नहीं मिलेगा, कोई बढ़िया फर्नीचर नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं है। मतलब जंगल में जाके उसे ट्रेनिंग करनी है, खुद ही ट्रेनिंग करनी है, कोई पढ़ाने वाला नहीं। स्टिल ही डिड इट। तो रिजेक्शन का फायर, और फिर उससे जनरेटेड कमिटमेंट, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, परसिवरेंस, इतने लेवल पहुंच गया कि अर्जुन फेल्ट थ्रेटन्ड, है, उसको ही खतरा पैदा हो गया। सो अपॉर्चुनिटीज वाले, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिनको लगता है यार हम कहां कर पाएंगे। इट इज पॉसिबल। मतलब एकलव्य इज रियल एग्जाम्पल ऑफ कि जहां उसके पास कुछ भी नहीं है, न हेरिटेज है, न रिसोर्सेज है, हाँ? कुछ भी नहीं, न कोच है, और तब भी उसने कर लिया। तो नेक्स्ट इज व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड फॉर सिविल सर्विसेज। जब आप अपना एनालिसिस करो, सो व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड। वन इज आईक्यू, ठीक है, बट आईक्यू इज नॉट एवरीथिंग। आईक्यू इज जस्ट वन ऑफ द scores that you should have good score. If you have good, it's good. नहीं है तो यहां इतना मटेरियल नहीं जितना आईआईटी में होता। देन EQ, यू नो EQ, ये जो इसमें है ना एथिक्स वाली बुक में, देयर इज अ सब्जेक्ट अबाउट EQ। व्हाट इज EQ, कोई बताएंगे? शॉर्ट वन लाइनर। एंड यस,
understanding your own emotions, understanding others' emotions, and then converting it to the advantage of the system. कई लोग तो अपने इमोशंस में उलझ के रह जाते हैं, they cannot control. रोना, हंसना, गुस्सा करना, उसी में उलझ जाएंगे, है ना। फिर दूसरे की समझ के उसको कैसे, उसके हिसाब से कैसे बिहेव करेंगे, वो खुद ही नहीं अपने को समझ पा रहे, अपने को कंट्रोल कर पा रहे। ये इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। इंटरव्यू में EQ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आगे बोलूंगा रीडिंग स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स फॉर क्रैकिंग सिविल सर्विसेज। रीडिंग स्किल्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? जैसे मैंने बोला, टाइम मैनेज करेंगे अच्छे से, और रीडिंग में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने किताब में एक इंटरनेशनल स्टडी का ग्राफ दिया है, क्रैकिंग सिविल सर्विस मेरी बुक जो है, उसमें आप देखेंगे कि एक हफ्ते बाद आपका जो रिटेंशन है वो 25 to 30% रह जाता है। जो आज आपने पढ़ा वो एक हफ्ते बाद 25 से 30%। पहली रात को ही वो आधे पे आ जाता है, और एक हफ्ते में 25 से 30, 1/4, और साल भर बाद बिलो 10%। तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ। आप 100% के चक्कर में पढ़ लो, है कि नहीं? आपके पास तो 10% भी नहीं रहा आपके पास, सो हाउ विल यू गेट रिजल्ट्स? तो रीडिंग स्किल्स में ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने उसी रात वो रिवाइज कर लिया जो आपने दिन में पढ़ा, और सारा नहीं, उसका ब्रॉड जो थीम होता है ना, कि भाई आज मैंने CA के बारे में पढ़ा या आज मैंने NRC पढ़ा, तो उसका अपने मन में भी आपने कर लिया कि आज ये 5-6 इसके ब्रॉड पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स, उतने से भी वो आपको फिर याद रहेंगे। फिर आपका रिटेंशन सीधा 50% पे चला जाएगा। तो लास्ट मिनट ब्रशिंग हुआ और आप थ्रू, है ना। तो ये रीडिंग स्किल्स आपकी इंपॉर्टेंट है। कई लोग देखेंगे आप पूरी किताब को एक दिन में पढ़ जाएंगे, कई लोगों को 10 दिन लगते हैं, तो वो रेलेवेंट मटेरियल पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग स्किल्स में मतलब रीडिंग में मैंने आपको बोल दिया, बाकी तो छोटी चीजें, बड़ी चीज याद रखने की आज के लिए रिवीजन। अगर आपने सेम डे रिवाइज नहीं किया तो आप सोच लो बहुत कुछ लूज कर रहे हो। एक बार सेम डे आपने उसका ब्रीफ भी बना लिया अपने मन में, मेंटल नोट भी बना लिया, तो आपका 50% रिटेन रहेगा। जो ग्राफ यूं होता जा रहा था, है ना, मैंने बोला ना 100 से वो 10 पे आ जाता है, बिलो 10, तो 100 के बाद आया मेरा 90, मतलब 80 पे आया, 70 पे आया, फिर मैंने इसको यूं उठा दिया 100, फिर अगली बार ग्राफ ऊपर से जाएगा। यू गेट मी? सो ओवरऑल रिटेंशन इज वेरी हाई। About writing skills, first and foremost funda is that stick to the word limit. किसी ने बताया आपको अभी तक? कितने आप सोचते हैं, उसने कहा 200 शब्दों में लिखो आंसर, तो आप लोग कितना क्या करते हैं? हाउ मच डेविएशन डू यू डू? हाँ, वेरी मच। क्यों? नॉट एबल टू एक्सप्रेस इन लिमिटेड वर्ड्स। और कोई बताएं? हाँ। नहीं, मैं एग्जाम की बात कर रहा हूं। हाँ, एग्जाम में कितना लिखते हैं आप नॉर्मली? कितने लोगों ने मेंस दिया यहाँ? 5 ने दिया, तो आप लोग कितना % डेविएट किए? हाँ, 80% डेविएशन। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरा खुद जो लोग मार्किंग करते हैं, इसे उनसे मेरा डिस्कशन हुआ इस मामले में, तो वो कहते हैं कि जो बोर्ड है, बोर्ड बनता है, इट्स नॉट वन सिंगल पर्सन हु असेसेस योर क्वेश्चंस, पूरा बोर्ड बनता है, बोर्ड डिसाइड करता है आंसर। इसमें एक आंसर क्वेश्चन के कितने टुकड़े हैं, हर पार्ट को कितना मार्क्स है,
ठीक है, वो सब डिसाइड करता है किसको हम आइडियल आंसर मानेंगे। समझ गए? तो वर्ड लिमिट के बारे में सबसे बड़ा फंडा मैं आपको बताता हूं, जो आप बोल रहे हैं ना, काफी डेबिट करते हैं, सभी करते हैं, मतलब आप अकेले नहीं। ये एक प्रकार से बोर्ड की आपसे एक्सपेक्टेशन है कि नहीं, कि आप जो कहना चाहते हैं 200 शब्दों में कहो, और आप कहो मैं तो 400 में कहूंगा, तो आप बोर्ड को तो नहीं मान रहे ना, है? तो ये एकदम आपके अगेंस्ट जाते हैं। दिस गाय इज, मतलब एकदम फ्रीक गाय है, मतलब फ्रीक बंदा है? जो मर्जी, इसको ध्यान ही नहीं है कि यहाँ 200 लिखा है, इसको बोधर ही नहीं कर रहा है। तो मतलब इनडिसिप्लिन काइंड ऑफ थिंग आएगी ना उनके दिमाग में। तो मुझे इसलिए बहुत जरूरी है कि मैं वर्ड लिमिट से मैक्सिमम प्लस माइनस 10% मैक्सिमम, क्योंकि आप वर्ड्स तो गिनोगे नहीं, इतना टाइम नहीं होता। तो आपको नॉर्मली अपनी राइटिंग का पेज में याद रहता है कि मेरे एक पेज में इतने वर्ड्स आ जाते हैं मोटा मोटा। तो इसलिए वो पेज एग्जैक्ट कैलकुलेशन में प्लस माइनस 10% चलेगा, उसको उसको ध्यान भी नहीं आएगा। उसका ध्यान कब जाएगा, या तो उसको एक्सपेक्टेड था पूरा 250 वर्ड्स और आप 50 शब्द में लिख रहे हो, एकदम से सोचेगा इसने कुछ लिखा ही नहीं है। और या था उसने 250 मांगा, आपने 500 लिख डाला, वो सोचेगा इसके मेरे पास फालतू टाइम है क्या तुम्हारे लिए, लो जीरो कर दिया, है ना? एंड ही इज वेल विद इन हिज राइट्स टू मेक इट जीरो। ठीक है? आप सोच रहे हो कि मैं इसके फंडे पिला रहा हूं, दुनिया भर का डाटा डाल रहा हूं, उसे चाहिए नहीं आपसे फंडे, उसे तो सब पहले से पता है ना? तो वो इस बात का ख्याल रखिए कि वर्ड लिमिट पे स्टिक करिए। दूसरा, कि जितने पार्ट्स हैं सबको आंसर करिए। बहुत लोग छोड़ देते हैं। एक मेन लगेगा कि औरंगजेब क्यों, उससे के बाद मुगल एम्पायर क्यों डिक्लाइन कर गया, एक मेन मान लिया हमने, लिख दिया। उसके बाद उसके 2-3 पॉइंट और होंगे ना, वो आपके दिमाग में ही नहीं, आप उसी में उलझे हुए हो। तो फिर वो नंबर तो जीरो हो गया, आपकी मार्किंग ही 4 में से हो रही है 10 की बजाय। अगर उसने 2 छोटे छोटे और क्वेश्चन डाले हुए उसमें, तो वो इसलिए क्वेश्चन हमेशा 2 बार पढ़ो, मिनिमम 2 बार। मेंस का कोई भी क्वेश्चन मिनिमम 2 बार पढ़िए, तब आपको रजिस्टर होता है। फिर देखिए कितने पार्ट इसने। तीसरा, उसके जो एग्जैक्ट वर्ड्स भी जरूर देखिए, मतलब वो पूछ क्या रहा है। वो मांग रहा है कमेंट और आप कर रहे हो एनालिसिस, तो बहुत गैप हो गया। क्या गैप हुआ आप बताओ? हाँ, हाँ। मैंने कहा ना 90% करो ना, छूटने दो। हाँ, 100 टच करने का टारगेट मत रखो, मैं आज फिर बता रहा हूँ, रखिए मत टारगेट कभी भी। आप क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे नहीं। जो आपको बेस्ट आता है वो सबसे पहले करो, उससे वो इंप्रेस भी होगा। वो लिखते जाओ आप, और अपनी क्वालिटी जरूर ऐड करो। अभी तो मैंने सवाल आपसे दूसरा पूछा था, इफ इज आस्किंग कमेंट एंड इफ इज आस्किंग एनालाइज, दोनों में क्या फर्क है? यस, पूरा एनालिसिस करना है, प्लस माइनस, बाएं दाएं आगे पीछे। ठीक है? कमेंट में सिर्फ आपकी आपके कमेंट मांग रहा है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एनआरसी, योर ओपिनियन। और एनालिसिस में वो सब कुछ मांग रहा है, पूरा एनालिसिस करिए, कौन इसके पक्ष में, कौन विपक्ष में, क्यों है, वाई। तो ये सारी चीजों को, जो क्वेश्चन है उसको पूरा ब्रेक करना सीखिए, और फिर उसके वो कोई छूट न जाए पार्ट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग में ये घुसा हुआ मुझे सारा क्वेश्चन 100% करने हैं, तो आपके ये सब छूट जाएगा, तो मार्किंग तो आपकी 40% में से होगी। यू गेट माई पॉइंट? फिर इंपॉर्टेंट है एनालिटिकल स्किल्स। मैंने आपको बताया ना, IQ EQ, उसके बाद रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, फिर एनालिटिकल स्किल्स।
कितना अच्छा आपका एनालिसिस है, वो इंटरव्यू में भी मैटर करता है। कई लोग बड़े फास्ट एनालाइज कर लेते हैं, तो वो इंटरव्यू में देखते हैं ये सब। फिर अनदर थिंग इंपॉर्टेंट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के बारे में अगर हम बात करें, बताइए क्या टाइम मैनेजमेंट के बारे में मिनिमम शॉर्टेस्ट पीरियड में कोई बताएगा? हाउ टू मैनेज योर टाइम, हाउ टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ योर टाइम, हाउ टू अवॉइड टाइम वेस्टर्स। एवरीवन हैज टाइम वेस्टर्स। आपके क्या टाइम वेस्टर है बताओ? कुछ एक्स्ट्रा टाइम देते हो एक टॉपिक पे, ये तो फिर भी टॉपिक पे हो भाई, आप टॉपिक पे तो हो ना। चलो उसका वो तो रीडिंग स्किल्स में आ गया, वो टाइम मैनेजमेंट में नहीं आया। रीडिंग स्किल्स में कि आपको वहां का टाइम मैनेज कर रहे हो रीडिंग का। बट मैं कह रहा हूं एक ओवरऑल दिन का टाइम, वीक का टाइम, मंथली टाइम, लॉन्ग टर्म टारगेट्स, मिड टर्म टारगेट्स, शॉर्ट टारगेट्स बनाते हैं ना, हर आदमी प्लान करता है पूरा। तो उसमें जो टाइम मैनेजमेंट है, एवरीवन हैज टाइम वेस्टर्स। तो क्या क्या टाइम वेस्टर्स है अपने सोचो जरा 2 मिनट, तभी तुम्हारे दिमाग में घुसेगा। न्यूज पेपर्स, और बोलो मोबाइल्स, और यूट्यूब, मूवीज, सोशल मीडिया, फेसबुक, और या स्लीप। स्लीप तो 8 घंटे तो जरूरी है। और ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ा टाइम वेस्टर हो, किसी ने नहीं बोला, लगता है आजकल बदल गया वो। हाँ मुझे यही लग रहा है। ना ना ना, वो नहीं, गर्लफ्रेंड वाले तो फिर वो सिविल सर्विस में नहीं रहते। एक वो होता था, पर आजकल वो सोशल मीडिया में चला गया। हमारे टाइम में एक बहुत बड़ा टाइम वेस्टर था फ्रेंड्स। वो आएंगे, गप लगाएंगे, चल भाई चल, चाय पी, कॉफी पी, चक्कर लगा के आते हैं। तो वो ठीक है ना, 5 मिनट तक तो बहुत बढ़िया है। एवरी 2 आवर्स इफ यू हैव टी और कॉफी ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, गुड इनफ। पूरे दिन में अगर आपने एक 20 मिनट का चक्कर, हमने लोगों ने ऑप्टिमाइज किया था अपने, आईआईटी वाले थोड़े मैथमेटिकल ज्यादा ही होते हैं ना, तो 20 मिनट का चक्कर हमने किया था डिनर के बाद, 3-4 का ग्रुप था। तो वो 20 मिनट में आपका एक तो फिजिकल हो गया दिन भर का, दिन भर कमरे में, और दूसरा उसमें कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल ही आता था, सिविल सर्विस वाला ही। तो उस पर जो चर्चा होगी तो आपको रजिस्टर ज्यादा होगा। मैं आपको जो बोला था ना इंटरेक्टिव सेशन क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज आधे लोग सोते रहते हैं। आपने सुना होगा ना, जो लेक्चर जितने लेते हैं आधे लोग उसमें स्विच ऑफ हो जाते हैं। तो इंटरेक्टिव से जैसे आपने सबने सोचा कि मेरा टाइम वेस्टर क्या है, तो टाइम वेस्टर्स को खत्म करना है आपने, है ना। हर एक को लिमिट बनानी है। मान लिया आपको सोशल मीडिया करना भी है, तो दिन भर अपना डाटा ऑफ करके रखिए, 5 मिनट खोल दीजिए, 10 मिनट खोल दीजिए मैक्सिमम। उसका कोई टाइम, वो ऐसा टाइम हो जो अदरवाइज आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है कि नहीं। जब आप बिल्कुल सबसे टफ वाला टॉपिक पढ़े हो, हर दिन में एक टॉपिक मत पढ़िए सबसे टफ वाला, हमेशा पैरेलली 2 सब्जेक्ट हमेशा रखिए। ये भी एक फंडा है। मतलब एक जो आपको बहुत प्रिय है, फेवरेट है, और एक जो आपके लिए बहुत टफ है। तो जो आपका बेस्ट टाइम है ना, किसी लोगों का लिए अर्ली मॉर्निंग होता है, किसी का लेट इवनिंग होता है बेस्ट टाइम। कई लोग 10 to 2 नाइट वाले होते हैं, कई लोग सुबह के वाले होते हैं, 5 से 8, 5 से 9। तो बेस्ट टाइम में सबसे टफ पढ़िए, फिर आप थोड़ा समझ पाएंगे। और जो नींद वाले टाइम है, स्लीपी आफ्टरनून, इस तरह के, वो सबके अपने अपने होते हैं। तो वो उस टाइम में वो पढ़िए जो आपको टॉपिक ज्यादा पसंद है, तो आपका टाइम बेटर मैनेज होगा। तो एक तो टाइम वेस्टर्स अवॉइड करने हैं, और ओवरऑल फंडा जो मैंने कहा अपना पूरा एक लॉन्ग टर्म प्लान, मीडियम टर्म प्लान और शॉर्ट टर्म प्लान बना के चलना है। वीकली टारगेट्स रखना है, वीकली रिव्यू होना है कि मेरा टारगेट कितना पीछे रह गया, फिर उसको अगले में एडजस्ट कर लेना है। एक ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट में एक और फंडा है कि लाइफ में जो फाइट है टाइम की, वो है अर्जेंट और इंपॉर्टेंट के बीच। आफ्टर यू हैव फिनिश्ड योर टाइम वेस्टर्स,
रियल की बात करें, ठीक है, तो अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, जैसे मैं पुलिस के एंगल से आपको समझाता हूँ, फिर आपके यहाँ भी लग जाए। हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट है कि मैं अपना टाइम, क्वालिटी टाइम क्राइम इन्वेस्टिगेशन में लगाऊं, क्राइम डिटेक्शन में लगाऊं, क्राइम वर्कआउट में लगाऊं, किंतु मेरा आधा टाइम कहाँ जाता है? वीआईपी आ रहे हैं, उनका फ्लीट पास होना है? ठीक है, या कहीं आग लग गई, वहां तत्काल जाना ही जाना है। दीज आर अर्जेंट, आई कैनॉट अवॉइड। कोई धरना प्रदर्शन चल रहा है, जुलूस चल रहा है, करना ही करना है, पर उसका नेट आउटपुट मेरे लिए जीरो है। हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, अर्जेंट है, अटेंड नहीं किया तो अभी नौकरी चली जाएगी। तो पर मेरा जो प्रोडक्टिव आउटपुट है वो नहीं है। तो आपको भी अपने टाइम में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट का मैट्रिक्स बनता है 4 का, देखा आपने कभी? अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, एंड लास्ट नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। तो ऐसे तो जीरो कर दो नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट को, लाइफ से भगा दो, एंड कोशिश करो कि इंपॉर्टेंट पे फोकस रहे, जो आपके उसके लिए बहुत जरूरी है। इस टॉपिक पे I'll talk about just one more thing, that is what all is required for civil services, उस पे आ रहा हूं मैं, है ना? That is पॉजिटिव, ये मेरी बुक में और डिटेल में, क्रैकिंग सिविल सर्विसेज में, पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है? पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों जरूरी है? इंटरव्यू के लिए बहुत जरूरी है। उसका क्या रोल है, मतलब आपको क्या लगता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं? जितना इंटरव्यू बोर्ड है, पता नहीं आप लोगों को यहाँ क्या सिखाते हैं, ये मान के चलो वो, उसमें हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि नॉट टू गेट एनी नेगेटिव मार्क्स। 250 का बोर्ड है तो 150 तो एवरेज देके चलते हैं वो पूरा बोर्ड, और फिर जब आप बाहर निकल जाते हो तो अब चर्चा होती है, तो उसमें 3-4 कमेंट बोलते हैं और कुछ नहीं होता। कोई बोलेगा ही वाज आउटस्टैंडिंग, कोई बोलेगा यार बहुत ही एरोगेंट है इसके रिमार्क्स, है? इस तरह के जो कमेंट आएंगे उसी में आपका स्कोर डिसाइड होता है, वो कमेंट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मेरा एक्सपीरियंस है कि नेगेटिव स्कोर हमें अवॉइड करना है। 150 आ जाए तो उसको मान के चलो मेरा ठीक आ गया, उसके ऊपर बोनस है, क्योंकि नेगेटिव जब मार्क्स आते हैं ना, 50 भी आते हैं 250 में से, इफ दे फाइंड आउट एनीथिंग नेगेटिव अबाउट योर पर्सनैलिटी, देन दे वांट टू जस्ट ड्रॉप यू, है ना? तो वो हमने अवॉइड करना है। बहुत ज्यादा बायस्ड व्यूज, बहुत ज्यादा इमोशनल, ओवर इमोशनल, वहीं पे रो दिए या वहीं पे गुस्सा कर दिए, है ना? ऐसे भी होते हैं कुछ लोग। ओवर इमोशनल मतलब आपका इमोशनल कंट्रोल नहीं है, बैलेंस्ड पर्सनालिटी नहीं है, आप बायस्ड पर्सनालिटी है, बहुत जैसे मैंने कहा बहुत एरोगेंट है या बहुत जिद्दी हैं, इस तरह के जो कमेंट आ गए तो आपकी माइनस करें। तो पॉजिटिव जो एटीट्यूड मैंने बताया वो लाइफ में बहुत जरूरी है। उसको समझने के लिए हम लोग 5 मिनट में बात करेंगे। एक थ्योरी है आई एम ओके यू आर ओके, कितने लोगों ने सुना? एनी वन ऑफ यू? पूरी किताब है इस पे मैनेजमेंट की, और हम 2 मिनट में इसको सीख लेंगे, ठीक है? अगेन इट हैज मैट्रिक्स ऑफ 4, आई एम ओके यू आर ओके, आई एम ओके यू आर नॉट ओके। सो फर्स्ट इज आई एम ओके यू आर ऑल्सो ओके, सो दिस इज द पॉजिटिव एटीट्यूड। जो मैं करता हूं, जो मैं हूं, सब ठीक ठाक हूं, फिट हूं, और जो आप लोग भी है सब नॉर्मली ठीक ही हो, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। मैं मान के चलो कि भाई सब ठीक है। सो दिस इज पॉजिटिविटी इन लाइफ। द मोमेंट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आई एम ओके यू आर नॉट ओके, क्या हुआ? आई एम ओके और यू आर नॉट ओके, फिर क्या होगा? झाड़, है ना?
यही तो आएगा, क्या करते हो बेकार, कुछ नहीं आता तुम्हें, किसी लायक नहीं हो, यही तो शुरू होगा ना। फिर उससे नेगेटिविटी आएगी। इफ आई स्टार्ट थिंकिंग ओनली आई एम राइट एंड एवरीवन एल्स इज रॉन्ग, तो वो लाइफ में नेगेटिव बना देगा आपको। सो दिस इज द अवॉइडेबल एटीट्यूड। सिमिलरली इफ यू स्टार्ट थिंकिंग आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, ये डिप्रेस्ड लोग हैं जो सोचते हैं मैं कुछ भी, यार मुझे कुछ, मेरे नंबर ही नहीं आते, मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, मेरा मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, तो ये और वो तो सब कर लेता है, तो फिर वो आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, दिस सच पीपल आर डिप्रेस्ड। एंड लास्ट इज दे लूज फेथ इन द सोसाइटी, इन लाइफ। आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, वो हर चीज पे करीब मारेंगे, फिर कुछ ठीक नहीं है, सब बेकार है साला, ऐसे बोल के आपका शुरू होता है लैंग्वेज। तो कुल मिला के आई एम ओके, यू आर ओके एटीट्यूड आप रखेंगे तो इट विल बी ऑल पॉजिटिव इन लाइफ। बाहर कुछ लोग हैं, आ सकते हैं, अभी विल टॉक अबाउट न्यू थिंग्स। अत्यव जी, हमारा एक मेन टॉपिक खत्म हो गया, तो नए लोग अगर एक दो दिख रहे हैं तो आ सकते हैं, चाहेंगे तो। इंटरव्यू पे बात करने हैं और वी टॉक अबाउट एथिक्स एंड इंटरव्यू पे बात करनी है लिटिल बिट, फिर एथिक्स पे करेंगे, फिर मैं आपको 15 मिनट ओपन हाउस भी देने वाला हूँ, है ना, उसके बिना क्या फायदा हुआ, थोड़ी मेरी भी तो बम्बार्डिंग होनी चाहिए ना। इंटरव्यू पे 5 मिनट्स, राइट, लिख लो, किताब में भी है बट लिख भी लो, तो 3-4 बड़ी चीजें बता रहा हूँ, जरूर लिखो। पहली गलती हमारे लोग करते हैं, इंटरव्यू के लिए 1000 मतलब तैयारियां करेंगे, नॉलेज नॉलेज नॉलेज। इंटरव्यू इज नॉट ए नॉलेज टेस्ट, इट्स ए पर्सनैलिटी टेस्ट, इट्स ए पर्सनैलिटी टेस्ट। एक एग्जांपल बताता हूँ, आपको याद है 2010 की बात है, मैं पहली बार बीएसएफ ज्वाइन करने दिल्ली आया था नैनीताल से। एक बंदा 3 साल से दे रहा था इंटरव्यू, और उसके तीनों बार नंबर 50 से 60 के बीच आ रहे थे। यस, तो उसने कहा, उसने मेरी बुक पढ़ी ह्यूमन इन खाकी, मेरी ह्यूमन इन खाकी बुक है, तो उसने कहा सर मैं आपसे मेल भेजा, मैंने कहा तू मेरे गेस्ट हाउस में था तब तक, मुझे घर भी नहीं मिला, मैंने कहा तू आ जा गेस्ट हाउस। 1 घंटा मैंने उससे बात की। सो एनएल, क्योंकि उसी से पता चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, इसको इसका सीधा सा मतलब है कि नेगेटिव स्कोर हो रहा है। तो 2 प्रॉब्लम थी उसकी, तो 1 घंटा की बात से जो निकली, मैंने बात करते ही पूछा कि तुम्हें क्या लगता है क्या कमी है तुम्हारे अंदर, कहता सर आई एम लैकिंग इन नॉलेज। तो मैंने कहा यही बहुत बड़ी गलती है, नॉलेज टेस्ट है ही नहीं, और दूसरी बात 2 एग्जाम तुम पास करके आ रहे हो, प्रीलिम्स एंड मेंस, वो तो पूरा नॉलेज टेस्ट है भाई, दे हैव ऑलरेडी चेक्ड योर नॉलेज। अब यहाँ पे नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा तुम्हारा, पर्सनैलिटी टेस्ट हो रही है। अगर कुछ आता है तो उसे कैसे एक्सप्रेस करते हो, नहीं आता है तो कैसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हो कि सर मुझे नहीं आता, मतलब वहां आपका नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा। तो उसकी एकदम आंखें खुली, वो कह रहा सर मैं तो किताबें रटता ही रहता था। कुछ नहीं रटना यार, इस दौरान अपनी पर्सनैलिटी की जो एंगुलरिटीज है उनको खत्म करना है। दूसरा, उसने मेरे को 1 घंटे में 50 बार बोल दिया, उसने बोला मे बी, मे बी 50 टाइम्स, तो ये उसका तकिया कलाम बन गया, क्लीशे होता है ना, कई लोगों को इंग्लिश के गैप चाहिए होते हैं, तो आई थिंक आई थिंक आई थिंक बोलेंगे, तो ऐसे उसने मे बी उसका तकिया कलाम बन गया। तो आई टोल्ड हिम, इमेजिन करो कोई भी तुमसे सवाल पूछ रहा है और तुम कह रहे हो मे बी सर दिस, मे बी दिस, पॉपुलेशन इंडिया की कितनी, मे बी 120 करोड़, हर कैसे होगा, मतलब व्हाट सिग्नल विल इट गिव, नॉट श्योर ना, कॉन्फिडेंस की कमी है। यू कैन नॉट से माय नेम इज जोगिंदर सिंह बेबी, है ना। तो पहला एग्जांपल ये है कि पहला मैंने जो आपको दिया, नॉलेज टेस्ट नहीं है, पर्सनालिटी टेस्ट है।
दूसरा ये है कि स्ट्रेस अवॉइड करना है हमने। अवॉइड स्ट्रेस। बहुत लोग इंटरव्यू का स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस के बारे में भी मैंने इस बुक में लिखा है, एक चैप्टर है पूरा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस का एक सिंपल फंडा आप समझ लो, स्ट्रिंग से, ठीक है ना। मान लिया कोई कपड़े सुखाने की तारी होती है? या ये रोप वे वाली केबल होती है, ठीक है। अगर उसमें स्ट्रेस नहीं होगा, टेंशन, टेंशन भी स्ट्रेस ही होता है, तो वो क्या काम करेगी? इट विल फेल। और अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया तो क्या करेगा? टूट जाएगी। बस ये सिंपली इसी से आप लाइफ लॉन्ग याद रखो। लाइफ में कोई भी एग्जाम आएगा, स्ट्रेस होना नेचुरल है। स्ट्रेस इज ए नेचुरल पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, और ऑप्टिमम स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड ऑल्सो। दूसरा फंडा है ना। अगर आप में स्ट्रेस ही नहीं लिया तो फिर आपकी परफॉर्मेंस बिलो बिलो ऑप्टिमल आएगी। कुछ भी तैयारी नहीं करते ना जो स्ट्रेस नहीं लेंगे, है? तो फिर वो मैक्सिमम कैसे आएगा? बट उसको इतना स्ट्रेच नहीं करना है कि मुझे रातों की नींद नहीं आ रही है, ठीक है ना। दूसरा फंडा इसमें, स्ट्रेस को मान के चलो, नेचुरल चीजें आएगा, चला जाएगा। जैसे हम उन दिनों थे तो इंटरव्यू बोर्ड के सामने बाहर बैठते ही आपको थोड़ा वो होगा। और स्ट्रेस के ना हर पर्सनैलिटी के वो होते हैं सिम्टम्स। किसी को आंखें झपझपाने लगेंगी, किसी के हाथ कांपने लगेंगे, किसी को यहाँ दुखी होने लगेगा, किसी के गर्दन में भी होता है, देखा होगा आपने। एक्चुअली दीज आर सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स आते हैं स्ट्रेस के, बट वो नेचुरल है, इट विल डाई डाउन। आप कहीं भी जाके देख लो, अगर आपको स्ट्रेस आया और आपने आपने दिमाग में नेचुरल पाला, 30 सेकंड में खत्म। जब तक आप जाके उनकी कुर्सी पे बैठोगे फिर एक बार स्ट्रेस आएगा, जब तक वो हेलो हाय करेंगे तब तक खत्म। तो इसको ये मान के चलो नेचुरल है, और थोड़ा स्ट्रेस होना जरूरी भी है, तो आपका स्ट्रेस आना बंद हो जाएगा। एक बड़ा फंडा इंटरव्यू का, नो ट्यूटर्ड आंसर्स। ये बहुत बड़ा फंडा है। ये पहले मैं इतना नहीं बताता था। मेरे अपने गवर्नर रहे भी मिस्टर के पॉल, अभी रिटायर हुए 1 साल पहले। ही वॉज कमिश्नर दिल्ली पुलिस, आईपीएस ऑफिसर थे। मैं उनको अपनी बुक प्रेजेंट करने गया, ये वाली क्रैकिंग सिविल सर्विस। कहता यार क्या हो गया आजकल के बच्चों को। वो बोर्ड में थे ना, 5 साल यूपीएससी के मेंबर थे, और सबसे टफ बोर्ड उनका माना जाता था। पूछना 5 साल पहले का जो बोर्ड थे, आज से मतलब 2013-14 से लेके 9 से लेके 14 तक सबसे टफ बोर्ड था मिस्टर के पॉल का। कारण वो कभी 125 से पार होते ही नहीं थे। बोले जितना देखो रटाई रटाई आंसर देते हैं, ट्यूटर्ड आंसर देते हैं। इसका मतलब भाई एक एक क्वेश्चन है, व्हाई आर यू कमिंग टू सिविल सर्विस, तुम भी वही बोले, तुम भी वही, तुम भी, इसका क्या मतलब हुआ? किसी ने ट्रेन किया हुआ ना। तुम, इसका मतलब यू आर नॉट ट्रूथफुल टू योर सेल्फ। तो ये भी एक बड़ा फंडा है। आप लोग ये सोचते हो मैं किताब को यूं कहीं उतार दूं, या जो उस टीचर ने बोला था, बहुत बढ़िया आंसर बोला था सीए के बाद, वही बोल दूं। कुछ नहीं। दोनों जगह की बात बोल रहा हूं मैं, एग्जाम की भी और इंटरव्यू की भी। अगर आपने रियल में आपने टॉपिक ग्रास्प किया है, अगर आपको अच्छे से मतलब टॉपिक की समझ है, तो आप अपनी भाषा में लिखो, शॉर्ट एंड क्रिस्प इन योर ओन लैंग्वेज, तभी आंसर बेस्ट होगा। उसके बिना बेस्ट हो नहीं सकता। ये कोई लैंग्वेज टेस्ट थोड़ी है। यू आर नॉट गोइंग फॉर इंग्लिश लिटरेचर टेस्ट। उनको तो सिंपली ये चाहिए कि आप क्या क्या कहना चाह रहे हो, आपका लॉजिक क्या है। हम लैंग्वेज के चक्कर में गोल गोल जलेबी बना देते हैं, ना मुझे समझ आती ना उसे समझ आती। कई बार ये होता है ना, मुझे यूं कहीं उतारना है, मुझे याद रहा नहीं, फिर भी मैंने उसके वर्ड्स यूज कर लिए, किताब वाले या टीचर वाले या कोचिंग वाले हैं, तो कभी भी मेरा सेम आएगा नहीं, तो उसका मीनिंग भी नहीं निकलता। सिंपलेस्ट वर्ड्स में लिखिए, एकदम बिल्कुल छठी क्लास वाली भाषा में। वो बड़े बड़े लिटरेरी वर्ड्स की जरूरत ही नहीं है। और क्लियर होना चाहिए कि आपको इसका मीनिंग समझ आता है। एनआरसी है तो क्या चीज है, किसी अखबार का, किसी किताब का कुछ नहीं। भारी भरकम शब्दावली से हमेशा अवॉइड करिए, इंटरव्यू में भी और एग्जाम में भी।
और नो ट्यूटेड आंसर्स। और एक हमेशा टू द पॉइंट आंसर। पूछ कुछ रहा है, बता कुछ रहे हो। पूछ रहा है देश की पॉपुलेशन कितनी है, और आप कह रहे हो जी नॉर्थ में इतनी है, साउथ में इतनी है, वहां पे उतनी है, इस कारण हमारी ज्यादा है, इतने साल पहले इतनी थी। वो तुमसे नॉलेज थोड़ी मांग रहा है, उसने तो पूछा नहीं। इस जस्ट आस्क की कितनी है, तो 120 करोड़। अबाउट 120 करोड़, अबाउट 130 हो गई होगी, ये आंसर आएगा ना इसका। मैं अपने और नॉलेज बखा रहा हूं, तो उससे वो नंबर कटेंगे, बढ़ेंगे नहीं। एकदम टू द पॉइंट लिखना है। और लास्ट फॉर इंटरव्यू इज नो आर्ट ऑफ सेइंग नो। आर्ट ऑफ सेइंग नो। इंटरव्यू में बहुत बार आप नो कह सकते हो। हम सोचते हैं नो कैसे कहेंगे, बड़े कूलली और नॉर्मली कहने, कोई आर्ट नहीं है वो भी। इसको टाइटल दिया आर्ट ऑफ सेइंग नो। भाई नहीं आता तो नहीं आता ना, खत्म। पाकिस्तान के पास कितनी बैलिस्टिक मिसाइल है बताओ? है नहीं पता ना, बस तुमने मुझे यही बोला ना, ऐसे ही बोल दो बोर्ड में यार। अगर तुम वहां स्ट्रेस लेकर के दुनिया भर का बोलोगे या नहीं बोल पाओगे तो उल्टा पड़ेगा। मतलब आप साइलेंट हो गए तो उल्टा पड़ेगा। और आपने कहा कि सर इंडिया से शायद 80% है, तो उल्टा जाएगा, क्योंकि उसने पूछा ही नहीं है वो। सॉरी सर, आई हैव नो आइडिया, सॉरी सर आई डोंट नो, खत्म। तो आर्ट ऑफ सेइंग नो इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट पॉइंट इज वन क्वेश्चन में हैव मल्टीपल आंसर्स इन यूपीएससी। ये भी समझ लो आप, बहुत सारे क्वेश्चन का कोई सिंगल आंसर नहीं होता। समझ रहे हो आप, है ना? मतलब कुछ उसने कोई पूछा, उसके 6 आंसर हो सकते हैं यार, 6 के 6 करेक्ट हो सकते हैं। तो आपको उसमें भी नहीं उलझना है कि वो तो ये बता रहा था यही होगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चन, कोई मैथमेटिक्स थोड़ा है कि 2+2 का आंसर 4 ही होगा। है? भाई अगर आप लॉजिकल हैं और अगर आपको लग रहा है कि एनआरसी या सीए राइट है, तो आपने आंसर दे दिया, वो भी ठीक है। किसी को लग रहा है सीए राइट नहीं, रॉन्ग है, उसने आंसर दे दिया अपना लॉजिक में, वो भी ठीक है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो उसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एक ही आंसर देना है। आंसर बहुत सारे हो सकते हैं। उसको कहने का तरीका कॉन्फिडेंस से कहो, लॉजिकल हो, टू द पॉइंट हो, क्लियर हो, क्लैरिटी हो, भाषा का जाल ना हो मतलब। तो नेक्स्ट में एथिक्स पे बात करेंगे। थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रहा है, बट करते हैं। थोड़ा मेरे को वार्म वाटर देना। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डिड आई राइट दिस बुक ऑन एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड? बिकॉज I had to teach one close person, daughter of some of my close friend. They just asked me for guidance for ethics. So because सिविल सर्विस का सब्जेक्ट लंबा चौड़े होते हैं, तो मैंने किताब उठाई कि थोड़ा देखें तो सब्जेक्ट सिलेबस क्या है, टॉपिक क्या है। फिर मेरे हाथ में एक मोटी सी किताब आई, इतनी मोटी है, 700-800 पेजेज है। तो मैं उसको 2 दिन लगा के भी मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। देन आई डिसाइडेड यार ये तो बिल्कुल माया जाल है, भ्रम जाल है। तो फिर मैंने कहा हम लिखते एक, तो 300 पेज की किताब हमने लिखी है। दिस इज द रीजन ऑफ राइट फॉर राइटिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज दिस इज एन एग्जाम ऑन एथिक्स, नॉट ऑन फिलोसॉफी। ये मुझे समझ आया, आप समझे? उसमें इतनी फिलोसॉफी भरी हुई थी, तो भाई फिलोसॉफी वाले क्या करेंगे फिर मैंने सारे क्वेश्चन पेपर उठाए ना पिछले सालों के, तो उसमें तो कुछ नहीं था।
तो मेरा पहला फंडा इसके बारे में है कि इट्स नॉट एन एग्जाम ऑफ फिलोसफी. यूपीएससी वांट्स टू नो हाउ एथिकल यू आर, हाउ विल यू बिहेव इन अ गिवन सिचुएशन, हाउ एथिकल विल योर डिसीजंस बी. अगर कोई एथिकल डायलेमा आई लाइफ में, और रोज एथिकल डायलेमा आती है, तो आपके डिसीजंस कैसे होंगे? that is what UPSC wants to know. और हम उसमें फिलोसफी पढ़े जा रहे हैं. फिलोसफी तो वो पढ़ेंगे ना जिनको, स्पेशली जिनका सब्जेक्ट है फिलोसफी. इट इज ओनली अ बैकग्राउंड टू द सब्जेक्ट. तो आपने देखा होगा, इसलिए उसने पूरा 50% तो केस स्टडीज को दे दिया है. तो बाकी 50% के 4 पार्ट हैं. फिलोसफी, और क्या है, साइकोलॉजी, थोड़ा सा इमोशनल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड है, वो साइकोलॉजिकल है. गवर्नेंस, मोरालिटी तो फिलोसफी में चला गया. गवर्नेंस, और लास्ट इज सोशियोलॉजी, थोड़ा सा लाइफ स्किल्स, रोल ऑफ सोसाइटी, रोल ऑफ फैमिली, ये भी बातें करते हैं ना. तो 4 पार्ट में आपका 50% है. तो अगर मैं उसको वैसे भी देख लूं तो 12% फिलोसफी का होना चाहिए. और उन्होंने कभी भारी भरकम फिलोसफी पूछी नहीं है. तो मेरे 90% वाले प्रिंसिपल पे भी आओगे तो भी मतलब फिलोसफी को बहुत ज्यादा पढ़ने का इसमें सेंस नहीं. आप देखेंगे उन्होंने जो गवर्नेंस पार्ट है ना, उस पर बहुत फोकस किया, बिकॉज उनका पर्पज ही वो है कि हाउ यू यूज एथिक्स फॉर गवर्नेंस. एथिक्स सिलेबस में आया ही सेकंड एआरसी की वजह से है. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की जो सेकंड रिपोर्ट है, सेकंड एआरसी की, तो उसमें प्योरली लिखा है कि हमें एथिकल वैल्यूज बढ़ाने की जरूरत है. करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है उसमें. तो उसके बेस पे ये सिलेबस में एंटर हुआ, और हम खाली फिलोसफी पढ़े जा रहे हैं. तो हम खुद उलझे हुए हैं. अब जिसने जिंदगी 4 साल बीए एमए करने में बिता दिए फिलोसफी की, आप लोग कैसे सीखोगे 4 दिनों में? वो फिलोसफी, दुनिया भर की फिलोसफी सीखना मेरा अगर काम हो गया तो फिर एथिक्स में तो रह गया. तो फिलोसफी वाले सीखेंगे ना यार, अरिस्टोटल क्या था, कन्फ्यूशियस क्या था, बुद्ध ने क्या कहा. मुझे भी सबको पता है बुद्ध ने क्या कहा, नॉर्मल सब पता है ना कि मिडिल पाथ है. इतना आपको नॉलेज होना चाहिए ना. गांधी जी स्टूड फॉर पीस, ट्रूथ एंड पीस एंड नॉन वायलेंस. इतना हमें और आपको पता होना चाहिए. इतना लिबर्टी के प्रिंसिपल्स क्या थे, या कि मैग्ना कार्टा, ये बेसिक्स तो वर्ल्ड फिलोसफी और इंडियन फिलोसफी मेरे ख्याल से हम सबको ऐसे ही पता होता है. हिस्ट्री वालों को पता हो जाता है. जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे उसमें आ जाएगा इतना. उसके बियॉन्ड की जरूरत नहीं है. तो लिमिटेड फिलोसफी पढ़िए. जो साइकोलॉजिकल पार्ट है बड़ा साइंटिफिक है, बहुत सिंपल है. ठीक है, बहुत सिंपल है. उसको जैसे मैंने कहा, इमोशनल इंटेलिजेंस बड़ी बड़ी इजीली आपकी क्लास ने ही बता दिया व्हाट इट इज. सिमिलरली एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, कुछ नहीं है उसमें, बहुत सिंपल है. और टेक्निकल है, वो मुश्किल से 2 दिन का काम है आपके लिए. मेन काम इसमें गवर्नेंस पे आइए. तो यू शुड नो आरटीआई एक्ट, यू शुड नो द व्हाट आर डिफरेंट कोड्स ऑफ कंडक्ट्स. फिर जो एंटी करप्शन लॉज हैं जो देश में, अभी लेटेस्ट एक एंटी करप्शन लॉ में अमेंडमेंट भी आया 2017 में, वो सब आपको पता होना चाहिए. बिकॉज आई हैव बीन डायरेक्टर विजिलेंस ऑल्सो. बहुत बात करते हैं लोकायुक्त की, इसकी उसकी, वो सबसे कुछ नहीं होता. चाहिए विल पावर. जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ था ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था. प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 जो है, इट इज फार फार स्ट्रॉन्गर. कोई किसी का जरूरत नहीं. आप जिसको चाहे उसमें आप जेल भेज सकते हो करप्ट आदमी को. चाहिए विल पावर, चाहिए, है ना. विल पावर कितने लोगों में? बिकॉज इट नोज सो मेनी थिंग्स ना. विल पावर चाहिए. करप्शन कहाँ है? गवर्नेंस में. गवर्नेंस का हेड कौन है गवर्नमेंट का? डिसाइड तो उन्हीं को करना है ना फिर, कि वेदर यू वांट जीरो टॉलरेंस और नॉट. कितने सारे हेड्स रोल होंगे,
इश्यूज वहां पे हैं। तो विल पावर हो तो पीसी एक्ट ही, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ही अपने आप में बहुत है। तो जो सेकंड एआरसी की रिपोर्ट है वो ये कहता है कि एक तो लीगेसी ऑफ अनचैलेंज अनडेटेड पावर है, पावर इन फ्यू हैंड्स, और एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल, इंस्पेक्टर राज जैसे बोलते हैं, इन सब की वजह से करप्शन बढ़ा है हमारा। कुल मिलाकर के पूरा का पूरा टॉपिक एथिक्स का कहीं ना कहीं करप्शन के अगेंस्ट है ना। सारा सेंटर में इसके करप्शन है। तो करप्शन को कैसे रोका जा सकता है बताइए। चलो, व्हाट इज गुड गवर्नेंस। चलो, गुड गवर्नेंस के 3-4 पॉइंट बता दीजिए। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, इक्विटेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस। सबने नहीं पढ़ा हुआ, अपनी ओर से पढ़ाई ना, जिसने नहीं पढ़ा वो और अच्छा बताएगा। देखा, इतनी देर में तुम भूल गए मेरे पंडित। जिसने नहीं भी पढ़ा वो बता सकता है। बताओ किसको आप अच्छा राज कहोगे। व्हाट इज गुड गवर्नेंस। बॉटम अप अप्रोच और सिटीजन्स वेलफेयर, और लोगों का गवर्नमेंट पे विश्वास हो। गवर्नेंस तो हम गवर्नेंस की बात कर रहे हैं ना, लोगों की तो बात नहीं है। मतलब गवर्नेंस में ऐसी गवर्नेंस हो जिससे लोगों का आप पे विश्वसनीयता है ना, ट्रस्ट वर्दीनेस है कि जो आप बोल रहे हो वो कर रहे हैं, चाह रहे हो वही कर रहे हो। अगर आपका गवर्नमेंट में ट्रस्ट खत्म हो जाएगा तो फिर कि बोल कुछ रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, पीछे से कुछ एजेंडा है, फिर वो बातें आएंगी, है ना। तो उसके लिए ओपननेस, जीरो करप्शन। जीरो करप्शन इज फर्स्ट थिंग, ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी सेकंड थिंग। भाई ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस का आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सोचो। रेलवे टिकट्स का ऑनलाइन होना, समझे आप। ऐसे आपके दिमाग में ज्यादा घुसेगा, फिर आप अपने शब्दों में बता पाओगे। यू गेट माई पॉइंट। उससे पहले कितना दलाली थे, कितनी लंबी लंबी लाइनें थी, जनता परेशान रहती थी, टिकटें मिलती नहीं थी। ऑनलाइन होने से कितना इजी हो गया। करप्शन जीरो तो नहीं हुआ, उसमें भी कुछ डाउट्स आ गए, बट 90% खत्म हो गया। ओपननेस बढ़ गई, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। आपको पता है कितनी सीट्स हैं, कितनी किस दिन पहले तक हैं, और आपको 1 महीना पहले आपका जर्नी प्लान बन गया, आप अभी से उसको बुक कर सकते हो, नहीं तो आप लाइन में खड़ा होना पड़ता जाके। सो दिस इज गुड गवर्नेंस। तो उसने सिस्टम से करप्शन खत्म किया, उसने सिस्टम से जो है में वो बढ़ा दी, ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ा दीजिए सिस्टम में। तो ये गुड गवर्नेंस है, ठीक है ना। जो चीजें इधर को जाएं, पटवारी सिस्टम में बहुत बड़ा करप्शन है। आपको अपना वही नहीं देंगे, खसरा खतौनी बनाने में ही पूरी राग दरबारी लिख दी उन्होंने। पढ़ी है किसी ने राग दरबारी। एक किताब थी, हमारे आईएएस ऑफिसर थे यूपी के, श्रीलाल शुक्ल, पूरा सीरियल भी आया था हिंदी में, बड़ी बहुत बड़ी वो मानी जाती है, मतलब एपिक। तो वो पूरी किताब के सेंटर में बेचारे के शुरू से लेकर आखिर तक उसकी अपनी उसकी नकल नहीं मिल पाती, और उसे शर्त है वो 2 रुपये मांग रहा था, वो दे नहीं रहा था। उन्होंने कहा मुझे देश का करप्शन को चेक करना है, उसको 2 रुपये दिए बिना उसने जो भागदौड़ कर ली, उसको आखिरी तक नकल नहीं मिली। वो तो वो करप्शन जो है, द मोमेंट यू मेक द रिकॉर्ड्स ऑनलाइन, जैसे आरटीआई के थ्रू बहुत सारे मैनुअल बन गए हर डिपार्टमेंट के, आर यू अवेयर। बहुत सारी चीजें ऑनलाइन आ गई, तो कितना कुछ तो आपका ऐसे ही ट्रांसपेरेंट हो गया ना। फिर उनके डिसीजन मेकिंग
जो रूल्स हैं वो सारे ट्रांसपेरेंट हो जाए। डिसीजन मेकिंग अभी भी डिस्क्रिशनरी है ना, कौन पोस्ट होगा, कहां पोस्ट होगा, तो ये वो अपनी छोड़ना नहीं चाहते अभी पावर। बट जो ही ये भी जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, रूल्स बनते हैं तो ट्रांसपेरेंट थोड़ा होता है ना, उतना करप्शन खत्म, उतनी गवर्नेंस गुड गवर्नेंस हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा वो चीज है। अब केस स्टडीज की बात करते हैं। केस स्टडीज जो है उसकी बेसिक प्रिंसिपल 3-4 हैं, वो समझ लीजिए। जिन लोगों ने मेंस दिया आप बताओ किस बात का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, what are you expected to write? हाँ, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व, और हाँ बताओ। हम्म, तो उसमें आप कैसे, हाउ विल यू पिक अप, व्हाट विल बी द क्राइटेरिया? वेलफेयर ऑफ द पीपल, और मार्जिनल सेक्शन को बेनिफिट हो, हाँ, और हाँ, लीगैलिटी, और हाँ, कंपैशन। हाँ नहीं ठीक है, सारी चीजें ठीक है। सबसे पहले एग्जाम ही एथिक्स का है, आपका आंसर वो होगा जो मोस्ट एथिकल होगा, है कि नहीं? 4 ऑप्शन है, आपको पता है ये एथिकल नहीं है, ये एथिकल नहीं है, तो मोस्ट एथिकल आंसर होना चाहिए आपका। दूसरा, इट शुड बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, जो पॉइंट आ रहा था ना, कंपैशन भी है, एम्पैथी है उसमें, पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। कंफ्लिक्ट आएगा कई बारी, जो इन्होंने बोला रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ में और पब्लिक इंटरेस्ट में कई बार कंफ्लिक्ट आ जाता है, फिर आपकी उसी में आपकी एथिकल वो देख रहे हो। बट मेरा गाइडिंग प्रिंसिपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट एथिकल, सेकेंडली इन पब्लिक इंटरेस्ट, वो डिसीजन लीजिए आप। कॉन्फ्लिक्ट मैंने बोला रूल ऑफ लॉ वर्सेज एथिक्स में भी आ सकता है, रूल ऑफ लॉ वर्सेज पब्लिक इंटरेस्ट में भी आ सकता है, एथिक्स वर्सेज पब्लिक इंटरेस्ट में भी आ सकता है, वो कॉल आपको लेनी है, वो कॉल आपको लेनी है। बट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अगर आप मुझे प्रॉब्लम देंगे तो मैं आपको अभी बता सकता हूँ। अदरवाइज मैंने 2013 से 19 तक की सारी केस स्टडीज इस किताब में सोल्व करी है। ये जो बुक है 13 टू 19 जितनी आई है रियल वाली, मतलब जो यूपीएससी ने पूछी है ना, और मैंने और एक भी नहीं लिया, उन सबको इसमें सोल्व किया, तो इससे ज्यादा आपको बेस्ट वो मिल जाएगा आंसर कि क्या मोस्ट एथिकल है। जैसे वो एक दिल्ली मेट्रो में बनी थी ना केस स्टडी, वो भी आई थी 13-14 में, है? मतलब वो केस स्टडी ये थी कि कोई इंजीनियर बना रहा है कोई मेट्रो टाइप का कोई प्रोजेक्ट, और उसमें उसे पता है कि डिजाइन फॉल्टी हो गया है, सीनियर की ओर से उसे टाइमलाइन मीट आउट करनी है, तो उसके जूनियर्स की गलती हो गई किसी लेवल पर, डिजाइन फॉल्टी हो गया, उसे पता है आगे जाएंगे तो पब्लिक सेफ्टी को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, तो उसके पास ऑप्शन जो है कि वो इसको छुपा जाए, उसके पास ऑप्शन है कि वो अपने सीनियर को, उसने बताया तो सीनियर कहता गो अहेड, यहाँ तो टाइमलाइन डेड होनी, मेरी तो नौकरी चली जाएगी, ठीक है, कि वो सीनियर ये कह रहा है उससे, तो उसके पास ऑप्शन है कि उसके भी और सीनियर पे चला जाए, मामले को हाईलाइट कर दे। एक ऑप्शन है कि इसको डिमोलिश कर दे, पूरा डिजाइन नया बना दे। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या करना चाहिए? हाँ, डिमोलिश कर देना चाहिए, हाँ, और सीनियर के पास जाना चाहिए, और
एक और तीसरी ऑप्शन क्या थी? ही कैन गो अहेड विद द प्लान। अच्छा, इधर पब्लिक वो भी काफी पब्लिक प्रेशर भी बढ़ रहा है, उसमें ये भी है कि भाई क्योंकि टाइमलाइन शूट हो रही है, जनता कह रही है मेट्रो नहीं बनी, मेट्रो नहीं बनी इतने दिन हो गए। पब्लिक प्रेशर भी है, गवर्नमेंट प्रेशर भी है, सीनियर्स का प्रेशर भी है। तो उसका इमीडिएट बॉस जो है उसको कह देता है छोड़ यार, तो ये सब चक्कर में मत पड़, इसको जल्दी खत्म करा। और उसने नोटिस कर लिया है कि इसमें डिजाइन फॉल्टी है। इसमें ये मैंने इसलिए मुझे सडनली याद आ गया कि पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो रही थी, तो यहाँ हर केस स्टडी में कोई ना कोई एक सेंट्रल आपको थीम लेके चलना पड़ेगा। यहाँ सबसे सेंट्रल पॉइंट क्या है? पब्लिक सेफ्टी। तो वो आइडेंटिफाई करिए। यहाँ पब्लिक सेफ्टी सुप्रीम है। एक जने की नौकरी 10 जने की नौकरी की कोई वैल्यू नहीं है उसके आगे। उससे आंसर बनेगा ये, आप समझ गए ना भाई? चाहे उसकी वो बंदा सस्पेंड हो जाए, उसके जूनियर सस्पेंड हो जाए, सीनियर हो जाए, या टाइमलाइन नहीं मीट आउट हो, ये चीजें माइनर हो जाती हैं। अगर कल को मैंने इसको खड़ा कर दिया जल्दबाजी में और ये रेलवे एक्सीडेंट हो गया तो 100-200 मरेंगे, देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? तब सारे लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे ना। सो द बेस्ट ऑप्शन इज कि इमीडिएटली डिस्पाइट द एडवाइस ऑफ द सीनियर यू हैव टू पुट योर फुट डाउन। जिम्मेदारी तो आप ही की है, आप ही के अंडर में था डिजाइन। आप यू हैव टू ओन अप, यस हमसे गलती हुई। यू हैव टू से यस दिस डिजाइन हैज टू बी रिवाइज्ड। उसके लिए जो आपको इस टाइम जो फ्लैग आएगा आएगा, तो वो सब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। फ्लैग आने को आपको सस्पेंड भी कर सकते हैं, फ्लैग आने को आपको कह भी सकते हैं चलो बढ़ा दिया। तीसरा एक अच्छा ऑप्शन है कि आप पब्लिक अवेयर करो ना। अगर एक बार पब्लिक उसमें आ गया तो भाई पब्लिक एटलीस्ट इसे बनने तो फिर नहीं देगी, तो इसको तो बनना तो खतरनाक है। तो आप थोड़ा कहिए भाई किसकी गलती से हो गया, एक दो को पनिश करिए जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थे उस डिजाइन के, और फिर उसको करेक्शन करना मैंडेटरी है। इस लाइन पे आंसर आएगा, है कि नहीं?